پاکستان نے بھارت کی 20 سالہ اسٹیٹ اسپانسر دہشت گردی کی تفصیلات دنیا کے سامنے پیش کر دی۔ خوزدار میں بزدلانہ حملے میں 6 بچے شہید ہوئے۔ دہشت گردوں نے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا۔ سیکرٹری داخلہ خرم آغا کی DGISPR کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا خوزدار میں دہشت گردی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اسکول بس حملے میں بھارت ملوث ہے۔ بھارت پراکسیز کے ذریعے بلوچستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔ دہشت گردوں کو خوزدار حملے کے خطرناک نتائج بھگتنا ہوں گے۔ DGISPR اور وفاقی سیکرٹری داخلہ محمد خرم آغا نے بھارت کی پراکسی وار کو فتنہ ہندوستان کا نام دے دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا 2009 میں پاکستان نے شواہد بھارت کے وزیر اعظم کو دیے۔ گرفتار دہشت گردوں نے بھارت کی پشت پناہی کا اعتراف بھی کیا۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ بھارت خطے میں امن کو سبوتیج کرنا چاہتا ہے۔ 21 مئی کو بھارت کے حکم پر فتنہ ہندوستان نے یہ سب کچھ کیا۔ یہ بھارت کی دہشت گردانہ ظلم کی شکل ہے۔ ان حملوں میں کوئی بلوچیت پاکستانیت نہیں۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا بیان مسترد کر دیا۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان بھارتی وزیر اعظم کا غیر ذمہ دارانہ بیان مسترد کرتا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کے بیانات علاقائی کشیدگی بڑھانے کی کوشش ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم پارٹنر ہے۔ پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑنا حقائق کے منافی ہے۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ سلامتی کونسل کی خوزدار میں اسکول بس پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ حملے میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اعلامیے میں کہا گیا کہ حملہ بزدلانہ اور سنگ دل تھا۔ ہر قسم کی دہشت گردی عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ کونسل کا پاکستان کے عوام، حکومت اور متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ سلامتی کونسل کا تمام ممالک سے عالمی قوانین کے تحت پاکستان سے مکمل تعاون کا مطالبہ۔ وزیر اعظم کے دورہ ایران کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل۔ وزیر اعظم شہباز شریف آئندہ ہفتے ایران کا دورہ کریں گے۔ شہباز شریف کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد جائے گا۔ وزیر اعظم کی ایران کے سپریم رہنما سید علی خامنہئی سے ملاقات ہوگی۔ پاک بھارت کشیدگی اور بعد کی صورتحال پر پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا جائے گا۔ پاک ایران تعلقات اور باہمی تعاون میں استحکام پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ایرانی قیادت پاکستان کو امریکہ اور ایران کے جوہری مذاکرات پر اعتماد میں لے گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں وزراء خارجہ کا خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ رہنماؤں نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق فریقین کا دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ بھارت بزدل دشمن ہے جس نے رات کو حملہ کیا، بھارت کو جنگ میں شکست فاش دی۔ مودی کی تقریر ہارے ہوئے وزیر اعظم کی تھی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی خوزدار میں میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں بھارت اب آبی دہشت گردی پر اتر آیا ہے۔ بھارت پراکسیز کے ذریعے ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا عزم ہے کہ بلوچستان امن کا گہوارہ بنے۔ قوم متحد ہے، دشمن کے ہر وار کا مقابلہ کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے عالمی مالیاتی ادارے کے وفد کی ملاقات۔ پاکستان کی معاشی صورتحال سمیت IMF الرحم پر تبادلہ خیال ہوا۔ وفد کا پاکستان میں معاشی اصلاحات اور IMF الرحم پر اظہار اطمینان۔ صدر مملکت آصف زرداری نے وزیر خزانہ اور ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ کہا IMF الرحم پاکستان میں معاشی استحکام کے لیے مددگار ثابت ہوا۔ الرحم سے ملک میں معاشی ترقی کو فروغ ملے گا۔ IMF متعدد ممالک کی اقتصادی ترقی میں کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات۔ ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملکی داخلہ اور خارجہ سیکیورٹی پر بھی بات چیت۔ بلاول بھٹو زرداری نے پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے کیے گئے رابطوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری میں بھارتی کشیدگی کے بعد کی تازہ ترین صورتحال پر بھی گفتگو۔
आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सीईओ पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल साकिब बिन बिलाल की मुलाकात। डिजिटल मईशत, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और मसनूई ज़हानत से मुताल्लिक बातचीत की गई। बिलाल बिन साकिब ने पाकिस्तान में क्रिप्टो ब्लॉकचेन से मुताल्लिक होने वाली पेशरफ से आगाह किया। पाकिस्तान का सालाना क्रिप्टो तिजारती हुजम $300 अरब से तजावज कर चुका। हम दुनिया के उन 5 सरे फहरिस्त ममालिक में शामिल हैं जो क्रिप्टो को तेजी से अपना रहे हैं। मैं अपना वादा निभा रहा हूं। ISPR ने मार्का हक के शहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए नया मिल्ली नगमा रिलीज कर दिया। नगमे ने 1965 की जंग के माहौल की यादों को ताज़ा कर दिया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शहदा मार्का हक को सर का झूमर करार दिया। कहा, ये इन्हीं शहदा और गाजियों की कुर्बानियों का समर है कि अल्लाह ताला ने हमें फतह और कामयाबी से सरफराज फरमाया। नगमे में गुलकारों की सहर अंगेज आवाजों और दिल सोज बोल ने सुनने वालों के दिलों को छू लिया। पाकिस्तानी मीडिया ने दुनिया को बताया कि हम सिर्फ सच बोलते और दिखाते हैं। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की बैटन ऑफ फील्ड मार्शल लेने के बाद सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कि मीडिया हमारा एक सुतून है। पाकिस्तान के मीडिया ने पाक फौज के साथ मिलकर जंग लड़ी। मीडिया हमारा फख्र है। दस मई को पाकिस्तानी कौम ने अपने इत्तेहाद और इत्तेफाक से दुश्मन को तारीखी शिकस्त दी, जिसे वो कयामत तक याद रखेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर इंटरचेंज मंसूबे का इफ्तिताह। वजीर आजम ने इस्लामाबाद के इंटरचेंज की तामीर 35 दिन में मुकम्मल करने पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और उनकी टीम की तारीफ की। शहबाज शरीफ ने कहा कि इतने कम वक्त में ऐसा मंसूबा मुकम्मल करना आसान काम नहीं था। वो वक्त दूर नहीं जब मोहसिन नकवी ऐसे मंसूबे एक दिन में मुकम्मल करेंगे। जम्मू और कश्मीर के अवाम भारतीय फैसले के तहत जुल्म और जबर का शिकार हैं। मुसल्लह तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ आलमी इक़दामात ज़रूरी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की गुफ्तगू। कहते हैं भारत गैर कानूनी तौर पर कश्मीर की आबादियाती साख्त तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। कश्मीरी सलामती कौंसिल के करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत के मुंतज़िर हैं। हालिया चीन के दौरे के दौरान बहुत सी कामयाबियां हासिल हुई। उन्होंने बताया कि चीन से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बशमूल बसें और गाड़ियां पाकिस्तान आएंगी और चीनी शहरी भी यहां सरमायाकारी के लिए आएंगे। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले। वजीर आला सिंध ने शारा भुट्टो के दोनों अतराफ दरख्त लगाने की हिदायत जारी की है। कराची में सिर्फ 7 कानूनी हाइड्रेंट्स हैं और पानी का बहरान अब भी मौजूद है। ताहम K4 मंसूबे की तकमील से बेहतरी आएगी। जमीन के खुर्द बुर्द का मामला बेंच टूट गया। समाअत आगे न बढ़ सकी। इस्लामाबाद में जमीन के खुर्द बुर्द के मामले में नैब तहकीकात के खिलाफ समाअत के लिए बनने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस इनाम अमीद मिन्हास के केस सुनने से माजरत। 2 रुकनी बेंच ने नया बेंच तश्कील देने के लिए फाइल कायम मकाम चीफ जस्टिस को भिजवा दी। इससे कबल केस की समाअत करने वाला डिवीजन बेंच 2 बार तब्दील हुआ। पहली बार 28 अप्रैल को जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का बेंच तब्दील किया गया। आसिफा भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध का वर्ल्ड बैंक के वफ्द के हमरा नजर मोहम्मद लगारी गोट का दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर शुदा घरों का मुआयना किया। आसिफा भुट्टो और MD वर्ल्ड बैंक ने मुतासरा खवातीन में घरों की मिल्कियत की असनाद तकसीम की। खातून अव्वल ने कहा, यह मंसूबा खवातीन को मालिकाना हुकूक देने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। सिंध हुकूमत देही खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरआज़म है। MD वर्ल्ड बैंक ने सिंध हुकूमत की क़यादत और विजन को सराहा। ताउन जारी रखने के आज़म का इजहार कर दिया। हुकूमत सिंध का खवातीन को EV स्कूटीज की फराहमी के लिए अगले माह कुरानदाजी का फैसला। पहले मरहले में 1000 खवातीन को EV स्कूटीज की फराहमी के लिए तैयारियां मुकम्मल। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास बड़े ट्रांसपोर्ट मंसूबे की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि EV टैक्सी और EV स्कूटीज नौजवानों के लिए रोजगार, खवातीन की नकलो हरकत और माहौलियात के लिए इंतहाई अहम है। कोशिश है कि जून में EV टैक्सी पर भी काम शुरू किया जाए।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कौमी मफाद पर ज़ाती मफाद को तरजीह नहीं देनी चाहिए। PTI अंदरूनी तौर पर तकसीम है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की कड़ी तनकीद कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन बानी PTI से मुलाकात के लिए अदालत से रुजू करें। बानी PTI हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी हुकूमत अपोजिशन के साथ बैठकर उनकी डिमांड पूरी करने की कोशिश कर रही है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की बानी PTI से मुलाकात। PTI और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुमकिन मुज़ाकरात पर तफसीली बातचीत हुई। बैरिस्टर सैफ ने मुख्तलिफ सतह पर होने वाले मुज़ाकरात से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने बैरिस्टर सैफ को हिदायत जारी की कि वो उनका मौक़िफ़ मुतल्लका फोरम तक पहुँचाएं। मुलाकात में पाकिस्तान और भारत के दरमियान उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का कोई फैसला नहीं किया। तहरीके अदम एतमाद लाएंगे तो पक्का काम करेंगे, फिलहाल ऐसा नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कोई बैकडोर मुलाकातें या मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी PTI ने वजाहत की है कि कानून और आइन के अंदर बात होगी। इस वक्त मुल्क के हालात खराब हैं, भारत के साथ कशीदगी है। हम अपनी तमाम चीजें पीछे रखकर पाकिस्तान को तरजीह देते हैं। महकमे जंगलात का पंजाब भर में कब्जा माफिया के खिलाफ फैसला कुन एक्शन। सीनियर सूबाई वजीर की निगरानी में महकमे जंगलात की बड़ी कार्रवाई। तहसील मुनकेरा रक कोटवाला में 24 एकड़ सरकारी अराजी वागजार करा ली गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कब्जा माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। आइंदा दिनों में वागजार मुहिम से मजीद तेजी लाई जाएगी। सरकारी अराजी पर कब्जा जुर्म है, कब्जे की सूरत किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विफाकी वजीर आबी वसाइल मोइन भट्टो ने मोहम्मद डैम के फेज 2 का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मंसूबे पर अब भी बहुत काम करने की जरूरत है। मंसूबे की ताखीर पर तशवीश है। उम्मीद है मुकर्ररा हदफ हर सूरत में हासिल होगा। पानी को जखीरा करने के बहुत सारे मंसूबे ज़ेरे गौर हैं। सिंतास मुआहदे की कानूनी पोजीशन अब भी बरकरार है। मुआहदा यकतरफा खत्म और मुअत्तल नहीं हो सकता। किसी सूरत मुआहदे की मुअत्तली बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी को पानी का हक छीनने नहीं देंगे। पंजाब में माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की शरह में कमी रिपोर्ट। सूबाई टास्क फोर्स बनाए इंसदादे पोलियो के इजलास में अप्रैल की मुहिम 98% कामयाब करार। टास्क फोर्स की पोलियो वायरस पर काबू पाने के लिए खुसूसी इक़दाम जारी रखने की हिदायत। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि वजीर आला मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की शाहदरा में मकतूला नजमा बीबी के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात की। ताज़ियत और इंसाफ की मुकम्मल यकीन दहानी करवा दी। कहा खवातीन पर तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त, जीरो टॉलरेंस अपनाई जाएगी। पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी मुतासरा खानदान को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेगी। नजमा बीबी को शौहर नजीर और उसकी दूसरी बीवी ने जिंदा जलाकर कत्ल किया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिटी डी ने मियां वाली को बड़ी तबाही से बचा लिया। रवानी खेल मोड़ के करीब सिटी डी और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। 3 खतरनाक दहशत गर्द हलाक, 6 फरार हो गए। तर्जुमान सिटी डी के मुताबिक दहशत गर्दों की फायरिंग के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई। हलाक दहशत गर्दों की शनाख्त का अमल जारी। दहशत गर्द पुलिस चौकियों पर बड़े हमले की मंसूबाबंदी मुकम्मल कर चुके थे। दहशत गर्दों के कब्जे से राइफलें, 3 दस्ती बम, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियांवाली में दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर इजहार तशक्कुर। CTD टीम को खिराज तहसीन पेश। 3 दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल करने पर शाबाशी दी। कहा दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हमारा अज़म गैर मुतज़लज़ल है। पंजाब में दहशत गर्दी के लिए आने वालों को सख्त तरीन जवाब मिलेगा। बन्नू में पुलिस चौकी की फतह खेल पर रात गए अस्करियत पसंदों का हमला। एक एहलकार जख्मी। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई और मुल्जिमान फरार हो गए।
पुलिस के मुताबिक अस्करियत पसंदों की फायरिंग से एक कांस्टेबल शदीद जख्मी एहलकार को अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस का हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए अलर्ट जारी। ईद उल अजहा की आमद के पेश नजर पंजाब भर में मवेशी मंडियां सज गईं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक सूबे भर में कायम 230 मवेशी मंडियों पर मजमूई तौर पर 4000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लाहौर में 1000 पुलिस अफसरान और जवान तैनात। IG पंजाब की व्यापारियों और शहरियों के जानो माल का तहफ्फुज यकीनी बनाने के लिए जामे और मौसर हिकमत अमली की हिदायत। ऑस्ट्रेलिया में सैलाबी तूफान की तबाहकारियां जारी। न्यू साउथ वेल्स में शदीद बारिशों के बायस 3 अफराद हलाक, हजारों घरों में महसूर हो गए। पुलिस के मुताबिक अब तक 590 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका। मकामी हुकाम ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने 50,000 से ज्यादा अफराद को इनखला की तैयारी का हुक्म दे दिया। सऊदी हज सिक्योरिटी फोर्सेस का ग्रैंड ऑपरेशन। रवां साल हज सीजन में गैर कानूनी तौर पर हज करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद सख्त। सैकड़ों अफराद गिरफ्तार। कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। ग्रैंड ऑपरेशन में अब जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन तैयारों का इस्तेमाल भी शुरू। हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी निजाम को हर मुमकिन हद तक मजबूत किया जा रहा है ताकि हज के मुकद्दस फरीज़े को मुनज़्ज़म, पुरअमन और कानूनी दायरे में मुकम्मल किया जा सके। इसराइल के गजा पर हमले जारी। वस्ती और शुमाली गजा में इसराइली बमबारी से 80 फिलिस्तीनी शहीद हो गए। भूख के बायस 29 बच्चे और बुजुर्ग जान की बाजी हार गए। अरब मीडिया के मुताबिक वस्ती गजा के मुगाजी कैंप पर इसराइल ने बमबारी की। जबालिया में 4 मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया। हैवी मशीनरी न होने के बायस मलबा हटाने में मुश्किलात का सामना। अमरीकी शमूलियत और मुआवनत के सबब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी हुई। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस कहती हैं, ये बात दुनिया के मुशाहिदे में आई कि देरीना मसाइल हल नहीं हुए हैं। अब दोनों ममालिक के दरमियान देरीना तनाज़ात हल होने का इम्कान फिर से पैदा हुआ है। ये दोनों मुल्कों के लिए मौका है। अच्छी खबर यह है कि हरीफ जंगबंदी जारी रखने के लिए पुरआज़म है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने का इख्तियार मनसूख। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूनिवर्सिटी को गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने से रोक दिया। यूनिवर्सिटी को खत में ट्रंप इंतजामिया के इक़दामात से आगाह किया गया। अमरीकी महकमे तालीम होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गैर मुल्की तलबा को दाखिला नहीं दे सकेगी। ज़ेर तालीम गैर मुल्की तलबा को भी ट्रांसफर करना होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने फैसले को गैर कानूनी करार दे दिया। चीन के जनूब मगरबी सूबे गोइयो में लैंडस्लाइडिंग, पहाड़ी इलाका होने की वजह से रेस्क्यू टीमों को शदीद मुश्किलात का सामना। लैंडस्लाइडिंग के बायस 4 अफराद हलाक हो गए। 17 अफराद मलबे तले फंसे हुए हैं। चीन ने कुदरती आफत के बाद जोग्राफियाई हंगामी हालात के लिए लेवल 2 इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के एलिमिनेटर मैच में आज लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड टकराएंगे। मैच शाम 7:30 बजे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीमें फाइनल तक रसाई के लिए जमकर मुकाबला करेंगी। कज़ाफी स्टेडियम में सिक्योरिटी, ट्रैफिक प्लान और स्टेडियम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। PSL 2025 का फाइनल इतवार 25 मई को खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के पहले एलिमिनेटर मैच में लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को 6 विकेटों से हराकर फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। कराची किंग्स से 191 रन का हदफ लाहौर कलंदर्स ने 4 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में पूरा कर लिया। अब्दुल्ला शफीक ने 35 गेंदों पर 5 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 65 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। फखर जमान ने 28 गेंदों पर 3 छक्कों और 5 चौकों के एवज 47 रन स्कोर किए। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत के लिए जनूबी कोरिया रवाना। अरशद नदीम की फहरिस्त ओलंपिक्स के बाद पहली बैनुल अक़वामी मुकाबला जाती शिरकत होगी।
अशर नदीम जनूबी कोरिया में होने वाले एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इवेंट 27 से 31 मई तक जनूबी कोरिया में जारी रहेगा। पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिश की नवीद सुना दी गई। पीडीएमए ने पंजाब भर में नया अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक 23 और 24 मई के दौरान सूबे के बेशतर अजला में तेज हवाएं और बारिश होगी। पीडीएमए पंजाब ने सूबे भर में आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। गुजरांवाला, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, जहलम, रावलपिंडी, गलियात, मरी, अटक में गर्द आलूद हवाएं चलने के साथ बारिश का इम्कान है। शहरी आसमानी बिजली के तहफ्फुज़ के लिए महफूज मकामात पर रहें। बिजली